नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नो योर जीएस। इस वीडियो में हम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग कॉन्सेप्ट, रोल ऑफ एनजीओ, केस स्टडी एंड एनजीओ एट ग्लोबल लेवल देख चुके हैं। पार्ट 2 में हम लोग डोमेन ऑफ एनजीओ एंड देयर सोर्स ऑफ फंडिंग एंड फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2020, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी डिस्कस करेंगे। Then we will move on Supreme Court guideline under which कौन कौन सी एनजीओ आरटीआई के अंदर आती है। इसमें एक डीएवी कॉलेज ट्रस्ट का एक केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन इशू किया फॉर एनजीओ टू कम अंडर आरटीआई। And then we will move on challenges faced by NGO despite their novel intent. Then we discuss some reforms which needed to bridge trust deficit between a state and NGO. यहाँ पे देखेंगे कि स्टेट और एनजीओ के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट कैसे है, उनको कैसे ब्रिज किया जा सकता है। एक्चुअली स्टेट जो है बाई फोर मीन एनजीओ को रेगुलेट कर सकती है, ओवर रेगुलेट कर सकती है, बोल सकते हैं यूएपीए, पीएमएलए, एफसीआरए, कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस। एनजीओ का इशू जो है, ये एनजीओ जो क्लेम करती है कि स्टेट जो है उनको बाई इन 4 तरीक़ों से उन्हें रेगुलेट करने की कोशिश करती है, उन पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करती है उनके फंक्शनिंग में। स्टेट ये क्लेम करती है एनजीओ आर नॉट ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल। They involve in some NGO involved in foreign funded activism. Some NGO involved in diversion of fund in money laundering. फॉर एग्जांपल मनी लॉन्ड्रिंग, हम लोग डिटेल में इसे डिस्कस करेंगे आगे। लॉन्ड्रिंग, some NGO maintain army of protester for the sake of their political mileage or to gain their political mileage। ये एक्चुअली ये स्टेट का क्लेम है कि इनके साथ ये इशू है, और ये है एनजीओ का क्लेम है कि स्टेट उन्हें ओवर रेगुलेट करती है, जिनकी वजह से दोनों के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो डिक्लाइन हुआ है आज के डेट में। देन वी विल मूव ऑन सम ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज थ्रू MCQ, थ्रू सम मेंस क्वेश्चन। NGO work in diverse domain. They work for environmental rights or environmental protection. For example, Greenpeace involved in afforestation activity, and they successfully stopped a coal mine in Mahan Forest. MC Mehta NGO filed a landmark PIL, number of landmark PIL in courts, Supreme Court and Delhi High Court, and brought lead-free petrol in India, brought CNG adoption in public transport in Delhi pollution case, and they brought closure of polluting industries across Ganga river in Ganga pollution case, and they also brought environmental study mandatory in school। ये इनका एक सबसे वन ऑफ द सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग चिल्ड्रेन रिगार्डिंग इन्वायरमेंट। Some NGO like CSC, Center for Science and Environment, work for creating awareness among youth to publishing their report on air pollution and sustainable development. Some NGO work for research,
For example, PRS involved in legislative research and give input to the bill. Some NGO like Pratham involved in conducting survey across rural area and measure learning outcome among children and publish their report in ASER, Annual Survey on Education Report. Some NGO work as a service provider, whereas for the marginalized section of the society or for the deprived section of the society, for example, Sarthak work for PWD, PUCL work for prisoners' right, Naz Foundation work for the empowerment and for the empowerment and to provide facility for HIV patient, HIV and AIDS patient. NGO also work where a state is willing to work, but they have lack of resources. For example, Doctors Without Border NGO provide emergency medical aid in conflicted area or in epidemic area. Some NGO like BB Andolan, Cry, Child Rights and You work for children's right. They involve in rescue, and BB Andolan NGO, which is one of the important NGO, which is run by Nobel laureate Kailash Satyarthi ji, and this NGO involved in to rescue child and from trafficking and child labor, bonded labor, and they also rehabilitate them. Some NGO work for human rights. For example, Seva, Self-Employed Women Association work for women empowerment through they provide microfinance, they provide training, they also provide health insurance and legal service to fight against exploitation. PUCL works for prisoners' right, Naz Foundation work for LGBT community, and they successfully brought decriminalization of Section 377. So this is all the domain where NGO work. Some NGO also work for the sustainable development. For example, AD. For sustainable development, not AD, sorry, Development Authority, DA. Development Authority NGO promote eco-friendly technology in rural India. And DA, Development Authority, is the world's first social enterprise dedicated to sustainable development. NGO funding come from individual donations, and if that NGO is registered under Section 12A of Income Tax Act and Section 18G of Income Tax Act, then there are certain benefits like under Section 12A, NGO are exempted from income tax if they are registered, and under 80G, under 80G, allow their donor to claim 50% tax deduction on their donation. For example, अगर किसी इंडिविजुअल ने सपोज उनकी टोटल सैलरी 12 लाख है, उन्होंने 1 लाख डोनेट किया, तो उसमें क्या है, जो 1 लाख डोनेट किया इसका 50%, मतलब हो गया 50,000 इसको माइनस कर दीजिए, 12 लाख माइनस 50K, मतलब 11.5 लाख। उनको क्या है, उस इंडिविजुअल को 50,000 का टैक्स डिडक्शन में टैक्स पे छूट मिल गया, उनको बस टोटल 11.5 लाख पे टैक्स देना होगा। So these are the benefits if they are registered under Section 12A and 18G of Income Tax Act. मतलब NGO को रजिस्टर होना है।
NGO get fund from state funding through grants, through a scheme. NGO also get fund from CSR funding, but condition is eligible NGO should be registered under Section 12A and Section 18G of Income Tax Act, and that NGO should be registered under CSR 1 of Ministry of Commerce Affair to get CSR fund. इसमें CSR फंडिंग में क्या होता है कि इसकी कंडीशन क्या है, कौन कौन सी कंपनी CSR करना मैंडेटरी है. इसमें क्या है, जो सेक्शन है 135 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, इसके अंतर्गत ये बोला गया है कि जिस कंपनी का नेटवर्थ ग्रेटर देन 500 करोड़ है एंड टर्नओवर ग्रेटर देन 1000 करोड़ है एंड नेटवर्थ ग्रेटर देन 5 करोड़ है, देन उनका जो नेट प्रॉफिट है, अगर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ऊपर है, देन मतलब एवरेज 3 साल का लिया जाता है नेट प्रॉफिट, तो उसका जो नेट प्रॉफिट है उसका 2% CSR में आपको कंट्रीब्यूट करना होगा. दिस इज द मैंडेटरी अंडर सेक्शन 135 ऑफ कंपनी एक्ट 2013. NGO also get fund from foreign funding, but to get foreign fund they have to take license, FCRA license from Ministry of Home Affairs. और इसमें क्या होता है, जो लाइसेंस है हर 5 साल पे रिन्यू कराना होता है. और अगर कोई NGO फॉरेन फंडिंग ले रही है तो उनको ये भी एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि वो मतलब डाइवर्जन ऑफ फंड में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, मतलब जो पर्पज़ है, जो स्टेटेड पर्पज़ है उसमें ही वो खर्च करेंगे. और इसमें ये भी है कि उनको एनुअली एक ऑडिट कराना होगा और ये फाइल करना होगा, ऑडिट फाइल करना होगा, एनुअल ऑडिट. रिपोर्ट फाइल करना होगा MHA में, दिखाना होगा कि मिनिस्ट्री को. यहाँ पे हम लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को डिस्कस करेंगे, जहाँ कि 2020 में अमेंड किया गया था FCRA 2010 को. इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ आपको. इसमें एक IB की रिपोर्ट आई थी 2014 में, 21 पेज की एक रिपोर्ट आई जिसमें ये फ्लैग किया गया कि सम NGO आर इन्वॉल्व इन फॉरेन फंडेड एक्टिविज्म में इन्वॉल्व हैं और या फिर एंटी डेवलपमेंट प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व हैं, विच लीड टू 2 to 3% GDP डिप, जिसकी वजह से इंडिया का GDP 2 से 3% गिरा था. इस रिपोर्ट में ये भी एक्यूज किया गया था कि जो ग्रीन पीस NGO है, they are attempting to destabilize India energy sector in collusion with US based anti coal lobbying group. तो उसके बाद ये हुआ कि 2015 में 10,000 NGO का लाइसेंस जो है, ऑर्गेनाइजेशन का लाइसेंस जो है कैंसिल किया गया था, इंक्लूडिंग फोर्ड फाउंडेशन एंड ग्रीन पीस. Ford Foundation is one of the prominent international funding agency. इस रिपोर्ट के आने के बाद FCRA को अमेंड किया गया 2020 में, जहाँ पे इनके प्रोविज़न को और भी स्ट्रिक्ट किया गया. फॉर एग्जांपल यहाँ पे रीग्रांटिंग को प्रोहिबिट किया गया. इसमें रीग्रांटिंग का मतलब क्या है, सपोज एक NGO को फंड आ रही है, फॉरेन फंड मिल रही है, एक NGO क्या करती थी, दूसरे NGO को सपोज तीसरे NGO 2 and 3 को ये अपना फंड, फॉरेन फंड, इसको भी डाइवर्ट करती थी. इनके पास भी FCRA लाइसेंस है, इनके पास भी FCRA लाइसेंस है, इनके पास तो होगा ही, तभी आएगा. तो इस चीज़ को प्रिवेंट किया गया, प्रोहिबिट किया गया इस FCRA 2020 में. यहाँ पे और भी ये भी कहा गया, जो NGO फॉरेन फंडिंग ले रही है वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को उसमें कैप किया गया, फ्रॉम 50% to 20% ही स्पेंड कर सकती है.
पहले सपोज अगर 1 करोड़ फॉरेन फंड आया, फॉरेन, उसका 50%, मतलब 50 लाख ही वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में खर्चा कर सकती है। पहले ये था। नाउ दे कैन स्पेंड ओनली 20%, means they can now spend only 20 lakh in their administrative expenditure. इसमें ये भी कहा गया कि जो FCRA अकाउंट है दे कैन ओनली ओपन इन SBI न्यू दिल्ली ब्रांच। और इसमें FCR लाइसेंस को जो पहले कैंसिल किया जाता था 180 डेज के लिए, नाउ दे कैन कैंसिल फॉर 360 डेज। मतलब अगर आप पहले मतलब लगभग 6 महीने के लिए कैंसिल होता था, नाउ लगभग 1 साल के लिए उनका लाइसेंस को कैंसिल किया जाएगा, ओनली ऑन द बेस्ड ऑन एलिगेशन के बेसिस पे। वेदर ये पता नहीं कि अभी तक कि आपका जो एलिगेशन आपके ऊपर लगाया गया वो कन्विक्ट हुआ है या नहीं, वो सच है या झूठ है। ओनली ऑन, तो ये तो बाद में डिसाइड होगा कि एलिगेशन सही था कि गलत, लेकिन विथ इमीडिएट इफेक्ट आपका लाइसेंस जो है 360 डेज के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा। इसमें आपको पहले बता चुके हैं कि ये जो लाइसेंस होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से लेना पड़ता है, एंड एवरी 5 ईयर्स में रिन्यू कराना पड़ता है। इसमें एनुअल ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है। और इसमें यह है कि आपकी जो फंडिंग आ रही है वो आप डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि जो एम्प्लॉय हैं उस NGO के, उनको उनका आधार डिटेल भी देना पड़ेगा टू गेट FCRA लाइसेंस। तो बेसिकली FCRA में को स्ट्रेंथन किया गया टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड टू कंटेन फॉरेन फंडेड एक्टिविज्म। FCRA 2020 आने के बाद लगभग इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि लगभग 6000 प्लस NGO का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। FCRA foreign contribution regulation, it prohibit certain individuals and political organization to take foreign funds. Certain individuals include MP, MLA, judges, media person, journalist, electoral candidate, and in 2020 civil servant or government employee were also included through FCRA 2020. यहाँ पे ये है कि FCRA पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रोहिबिट करती है फॉरेन फंड लेने से, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जो कि 2017 में ऐड किया गया था। इसमें ये कहा गया कि अगर जो फॉरेन कंपनी है अगर वो इंडियन सब्सिडरी है या फिर वहाँ पे इंडियंस होल्ड 50% शेयर, देन फ्रॉम दैट कंपनी इंडियन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक फॉरेन फंड। लेकिन ये जो फॉरेन कंपनी है उनको ये दोनों कंडीशन होना चाहिए, या तो इंडियन सब्सिडरी होना चाहिए या फिर इंडिया होल्ड 50%, देन ओनली फ्रॉम देयर कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो फंड ले सकती है वहाँ से। यहाँ पे हम लोग NGO ट्रांसपेरेंसी अंडर RTI डिस्कस करते हैं। NGO ट्रांसपेरेंसी अंडर RTI कौन कौन सी NGO इस केस में क्या हुआ था, देखते हैं। DAV कॉलेज ट्रस्ट वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन। इस केस में क्या हुआ था कि ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि इफ़ NGO आर सब्सटेंशियली फंडेड बाय ए स्टेट देन दैट NGO विल कम अंडर RTI। एक्चुअली NGO क्या है, एक नॉन स्टेट एक्टर है, दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ अ स्टेट, बट यहाँ पे जो सब्सटेंशियली फंडेड है
इट वेर नॉट न्यूमेरिकली डिफाइंड एंड सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिफिनीशन नहीं दिया सब्सटेंशियली फंडेड का, और इसमें ये कहा गया कि इट विल डिसाइडेड ऑन द केस टू केस बेसिस। सब्सटेंशियली फंडेड में इंक्लूड किया गया, इनडायरेक्ट फंडिंग को भी इंक्लूड किया गया था, जैसे लैंड गिवन एट सब्सिडाइज रेट, और कह सकते हैं जो इनकम टैक्स में उनको छूट मिलती है, ये भी इनडायरेक्ट फंडिंग में इंक्लूड होती है। इसको भी सब्सटेंशियली फंडेड में इंक्लूड किया गया। Despite their novel intent, NGO faces some problems like politicization of NGO। इसमें क्या होता है कि जो NGO होती है रिसीव फंड्स फ्रॉम अपोजिशन पार्टी और enemy country to protest a state policy or development project, or to gain their own political mileage, MI। So next, they involved in diversion of funds, means misuse of money that was meant for a specific purpose। सपोज इनको फंडिंग आ रही है, जैसे कोई एक एनजीओ है, एनजीओ है, उनको फंडिंग आ रही है फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, बट दे यूज दिस मनी फॉर पर्सनल गेन। फॉर एग्जाम्पल, दे यूज लग्जरी goods, they spend money in travel, they involve in protest to gain political attention or mileage। They faces lack of a skilled workforce। Most of NGO are not digitalized. So what the benefits of digitalization? These points are benefits of utilization, means they voluntarily increase their transparency। If for example, they can voluntarily update their funding data on their website। Digitalization can increase their reach। They can easily mobilize their fund through online mode। They can interact with state in a faster way। So all these are the benefits of digitalization। NGO are not transparent and accountable। इस पॉइंट को बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। सो स्टेट एंड पीपल ट्रस्ट डिक्लाइन ऑन NGO वर्क इन साइलो। इसका मतलब समझिए, इट्स लीड टू डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब समझिए कि एक एरिया में अगर 4 NGO काम कर रही है, NGO 1, NGO 2 या फिर NGO 3, NGO 4, और उस एरिया में जो पुअर पीपल हैं, जो पुअर चिल्ड्रेन हैं, उनको ये सब बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं चारों NGO। तो दे हैव नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम। अब इसमें क्या हो रहा है, एक बच्चे सेम बुक चार जगह से उनको मिल रही है, सेम बुक। तो व्हाट द यूज ऑफ दिस 4 बुक? दे ओनली नीड 1 बुक। सो दिस इज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। और यहाँ पे NGO का एक प्रॉब्लम है कि दे हैव पुअर कोऑर्डिनेशन विथ स्टेट। ये एक्चुअली ये है कैसे, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बेसिकली स्टेट ये सोचती है कि दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल, मीन्स दे डोंट वांट टू कम अंडर RTI। इसमें एक देखा था, हम लोगों ने डिस्कस किया था DAV कॉलेज ट्रस्ट केस 2010,
means they don't want to come under RTI. they they don't want to be accountable. स्टेट ऐसा सोचती है कि दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट, दे इन्वॉल्व इन डाइवर्जन ऑफ फंड एंड like foreign funded activism and money laundering. Some NGO also involved in terror funding, and these foreign funding, money laundering, etc. validated in IB report. IB report also accused, which were published in 2014. A state think they maintain an army of protest for the sake of their interest only. और इसमें क्या है, एनजीओ के क्या सोचती है कि स्टेट उन्हें ओवर रेगुलेट करिए थ्रू यूएपीए, थ्रू पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, एफसीआरए, लाइसेंस, कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस. और एनजीओ थिंक दे स्टेट लेवल देम एज एंटी डेवलपमेंट व्हेन दे प्रोटेस्ट for the interest of environment, for the interest of people, for the interest of human rights. So इसकी वजह से इनका दोनों के बीच में जो थिंकिंग है, इसकी वजह से दे हैव पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम. So how to improve trust deficit between a state and NGO? Some reforms needed. For example, a state and NGO could be a partner while making EIA, SIA report. EIA means environment impact assessment, and SIA means social impact assessment. And in development project, a state should take criticism of NGO as a positive feedback to improve governance and not label them as anti-national. स्टेट को इसमें क्या होता है, इसमें एक एग्जांपल बताता हूँ जिसमें स्टेट ने जो फीडबैक हो वो पॉजिटिव लिया था और अकॉर्डिंगली दे शेप देयर पॉलिसी. जैसे प्रथम एनजीओ की एक ACR रिपोर्ट आती है, ऐसे रिपोर्ट आती है जिसमें ये कहा गया था कि इंडिया का जो लर्निंग आउटकम है वो पुअर है. तो इस चीज़ को स्टेट ने पॉजिटिवली लिया और उसको इम्प्लीमेंट भी किया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी में टू इंक्रीज लर्निंग आउटकम. States must allow NGO to mobilize their फंड एज NGO कांट वर्क विदाउट फंड. फंड के बिना कैसे कोई काम कर सकता है. तो NGO स्टेट को ओवर रेगुलेट नहीं करना चाहिए उनके फंडिंग पे. यहाँ पे स्टेट NGO को भी समझना होगा कि दे शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल टू इंक्रीज देयर ट्रस्ट एंड शुड नॉट इंगेज इन फॉरेन फंडेड एक्टिविज्म. फॉरेन फंडेड एक्टिविज्म का मतलब आप समझ चुके हैं या नहीं समझे तो मैं थोड़ा यहाँ पे एलाबोरेट कर देता हूँ. इसमें क्या है कि जो NGO है वो फॉरेन कंट्री, इनेमी कंट्री से, जो इनेमी कंट्री वहाँ से फंड लेकर यहाँ का उनका जो इंटरेस्ट है, सपोज दे वांट सम प्रोटेस्ट इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो ये इन्वॉल्व होती है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को इंडिया में प्रोटेस्ट करती है. जैसे एक IB की रिपोर्ट में बोला गया था ना, ग्रीन पीस इन्वॉल्व थे, ग्रीन पीस NGO वेर इन्वॉल्व इन टू प्रोटेस्ट proposed coal mine in Mehan forest, as they were involved with US anti-coal lobby. तो इसमें इनका लाइसेंस भी चला गया था 2015 में ग्रीन पीस का. NGO must understand a state regarding importance of development project. Actually, the development project bring employment and for increase
standard of life, and must be partner with a state in implementation with minimum impact on environment and society. बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि NGO को समझना चाहिए इम्पोर्टेंस क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का. इसमें ये भी ध्यान रखना है कि इन्वायरमेंट और सोसाइटी पे उस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट कम पड़े, कम से कम इन्वायरमेंट का नुकसान हो, कम से कम सोसाइटी के लोगों का नुकसान हो. So this is all from my side. एंड कंक्लूजन में हम लोग ये बोल सकते हैं कंक्लूजन में कि सिविल सोसाइटी इज नॉट जस्ट ए प्रेशर ग्रुप, इट इज़ ए पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज़ द सोल ऑफ डेमोक्रेसी. NGO play a critical role to deepen democratic value, deliver justice, amplify and also amplified marginalized voice of the society. So next time जब भी आप NGO सुनते हैं तो इसका मतलब ये नहीं सोचिए कि जस्ट इट इज़ ए डोनेशन, कि हमको डोनेट करना होगा NGO को. थिंक दे आर ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेटिव एजेंट, दे ब्रिंग लॉट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन द सोसाइटी. आपने जैसे MC मेहता का एग्जांपल ले लीजिए, प्रथम NGO का एग्जांपल ले लीजिए. दे ब्रिंग लॉट्स ऑफ चेंजेस, लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन द सोसाइटी. सो कुछ MCQ कर लेते हैं. MCQ करने से पहले एक क्वेश्चन है. चलिए पहले MCQ कर लेते हैं. यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, एक्चुअली 5 है, एक और क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस करेंगे. आइए के मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, NGO इन इंडिया with reference to NGO in India, consider the following statement. NGO in India can be registered only as a trust. देखिए यहाँ पे only, यही इस स्टेटमेंट को गलत कर दे रहा है. नॉट, they can be registered as a trust, they can be registered as a society, they can register as a company. So statement was is not correct. Only NGO with FCRA registration can receive foreign donation. इसमें क्या कह रहा है, ओनली NGO विथ FCRA कैन रिसीव फॉरेन डोनेशन. यस करेक्ट. सेक्शन 8 कंपनीज आर अलाउड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट टू इट्स मेंबर. नॉट, ये गलत है. सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 ये कहती है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इसके अंतर्गत रजिस्टर होती है, दे विल बी रजिस्टर एज ए चैरिटेबल कंपनी. फॉर एग्जांपल प्रथम, याद होगा आपको, बहुत बार ये एग्जांपल दिया हूँ. प्रथम NGO इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट 2013. सो ये भी गलत हो गया. 2 इज करेक्ट. सो नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2. Which of the following are mandatory requirement for an NGO in India to be eligible for CSR funding? आपको बताया था ना, NGO in India to be eligible for CSR funding. क्या क्या था, 12A ATG के अंतर्गत ऑफ इनकम टैक्स के अंतर्गत रजिस्टर होना चाहिए और CSR 1 फॉर्म ऑफ MCR के अंदर रजिस्टर होना चाहिए. तो चलिए देखते हैं. रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनी एक्ट, इसमें क्या किया गया, फॉलोइंग आर मैंडेटरी, मतलब इसके बिना नहीं हो सकता है. तो ये देखते हैं, रजिस्ट्रेशन अंदर द कंपनी एक्ट नहीं, ये ऐसा नहीं है कि इसके अंदर मैंडेटरी होना ही है. अगर कोई सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर है, ट्रस्ट एक्ट के अंदर, वो भी CSR फंडिंग ले सकते हैं. सो दिस इज नॉट करेक्ट. रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12 ATG ऑफ इनकम टैक्स, यस दिस इज करेक्ट. रजिस्ट्रेशन विद द MCA फॉर्म CSR 1, यस दिस इज करेक्ट. 2 and 3 आर करेक्ट. चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द FCRA 2010 एंड इट्स अमेंडमेंट इज करेक्ट. ओके, अमेंडमेंट को भी इंक्लूड किया गया है और FCRA 201 को. तो देखते हैं. FCRA प्रोविट द ट्रांसफर ऑफ फॉरेन फंड फ्रॉम वन NGO टू अनदर. यस दिस प्रोविट रीग्रांटिंग, मतलब ये एक NGO दूसरे NGO 2 NGO 3 को फंड डाइवर्ट नहीं कर सकती है
This is correct. NGO can receive foreign fund only in bank account specified by the Ministry of Home Affairs. Yes, this is also correct. FCI registered NGO are allowed to fund political party for educational campaign. नहीं, अगर आप वहाँ पे फंड ये नहीं है. This is correct, not correct. So only 1 and 2 are correct. देखते हैं सेक्शन 8 ऑफ कंपनी, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. कंपनी अलाउड टू कैरी आउट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विदाउट आरबीआई लाइसेंस. करेक्ट, ये प्रोविजन नहीं है इसका. प्राइवेट कंपनी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फाइलिंग जीएसटी रिटर्न. नो, ये तो ये बोलते हैं कि एनजीओ फॉर्म्ड अंडर कंपनी एक्ट एज ए चैरिटेबल कंपनी. कंपनी डीलिंग एक्सक्लूसिवली विथ डिफेंस प्रोडक्शन. नहीं, ये भी नहीं है इसका प्रोविजन है. सो ओनली बी इज करेक्ट. एक क्वेश्चन है और एक जो फिल्म्स में आया हुआ है और यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, इसको हम लोग देख लेते हैं. क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि आपको बताना होगा कि जो क्राई है उनका, ये एनजीओ हो गया, इनका फील्ड वर्क, मेन फील्ड वर्क क्या है. हेल्प एज इंडिया, हेल्प एज इंडिया, हेल्प एज इंडिया फर्स्ट हो गया, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड. स्नेही. सो यहाँ पे मैं देता हूँ इसको. एक्चुअली यहाँ पे क्राई वर्क फॉर चाइल्ड राइट्स. हेल्प एज इंडिया वर्क फॉर एल्डरली केयर एंड स्नेही एनजीओ वर्क फॉर मेंटल हेल्थ. बेसिकली यहाँ पे स्नेही एनजीओ के बारे में थोड़ा डिटेल बताना चाहूँगा, थोड़ा एलाबोरेट कर देता हूँ. दे वर्क फॉर मेंटल हेल्थ केयर एंड काउंसलिंग सर्विसेज and they also work for emotional well-being, especially for the youth and children. And ये क्या है ना, ये एनजीओ जो है 24/7 एक हेल्पलाइन नंबर भी चलाती है फॉर टू टेकल द पर्सन जो सुसाइड करना चाहते हैं. उनको बेसिकली ये चाहते हैं कि वो ना करें, उनके लिए भी काम करती है. हेल्प एज इंडिया बेसिकली क्या कहती है, एम्पावर्ड एल्डरली थ्रू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विस, एज केयर एंड दे आल्सो एडवोकेट फॉर एल्डर फ्रेंडली पॉलिसी. एक्चुअली हेल्थ केयर सर्विस में क्या आता है, हेल्थ केयर अगर हम आपको बोले तो हेल्थ केयर इसमें क्या कहता है, जैसे किसी को अगर मोतियाबिंद हो गया तो उसके ऑपरेशन के लिए एक प्रोग्राम रन करती है. एज केयर के एक एज केयर में क्या करती है, दे प्रोवाइड एज केयर में दे प्रोवाइड सम फंड्स एंड ठीक है. एंड ये आपको तो पता ही होगा, क्राई दे फॉट फॉर चाइल्ड राइट्स. सो एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं, टाइमिंग थोड़ा लंबा हो रहा है, लेंदी हो जाएगा वीडियो नहीं तो. एक क्वेश्चन है, सिविल सोसाइटी रोल इन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन. सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस रोल इन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, उनका रोल क्या क्या रहा है. बहुत शॉर्ट में डिस्कस कर देता हूँ, जो की पॉइंट्स है, कीवर्ड है, उसके बारे में डिस्कस करूँ. पहला ये है, दे इन्वॉल्व इन अवेयरनेस जनरेशन. आप एग्जांपल कोट कर सकते हैं सीएससी का,
मतलब सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, दे पब्लिश रिपोर्ट ऑन एयर पॉल्यूशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सेकेंड ये है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, कम्युनिटी थोड़ा सा आपसे कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, फॉर एग्जांपल चिपको मूवमेंट। इसके बारे में आप लोग डिटेल में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या होता है, विलेजर हग ट्रीज टू प्रिवेंट देयर कटिंग। थर्ड ये है कि दे दे मॉनिटर एंड एक्ट एज ए वॉचडॉग फंक्शन, मॉनिटरिंग एंड वॉचडॉग फंक्शन। आप इसके फंक्शन, इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं MC मेहता का, MC मेहता NGO। यहाँ पे हम आपको डिटेल में बता चुके हैं पहले ही। दे आर MC मेहता इज ए फेमस इन्वायरमेंटल लॉयर, फॉट लैंडमार्क केसेस लाइक ग्रीन पोल्यूशन, ये गंगा पोल्यूशन केस, फॉट फॉर गंगा पोल्यूशन केस। फोर्थ रोल में ये दे सकते हैं, दे इन्वॉल्व इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी DA, the world first social enterprise dedicated to sustainable development. This NGO promote eco-friendly technology in rural India. So this is all from my side. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और नोयो GS को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सेलिंग। जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।